of the alliance government that is in power in Jharkhand. You'll remember the Congress, the JMM and the RJD, all three parties together in power. But for how long? 32 MLAs of the ruling UPA in Jharkhand were flown from Ranchi to the Congress-governed state of Chhattisgarh and eventually to a resort near the state capital, Raipur. This comes amid widespread fears of alleged poaching attempts by the opposition BJP to topple the Hemant Soren Jharkhand government. Remember, on August 25th, you'd had the Election Commission hold Soren guilty of misusing his position by allotting a stone mining lease to himself last year. The poll body had actually recommended his disqualification as an MLA, which would mean he'd also have to temporarily step down as the chief minister. They'd recommended this to the governor. Now, while there is no clarity on the next few steps, the BJP has tweeted out a video of a government vehicle carrying liquor bottles located outside of the resort where you currently have all the MLAs present. Because remember, the Congress, the JMM, they've shifted their MLAs out to a resort. They're afraid of poaching taking place as a question mark remains on the future of their government. The BJP yesterday tweeted out a video of liquor bottles being carried into that resort that's led to more controversy and an exchange of jibes between Chhattisgarh's current chief minister and its former chief minister. Very quickly, I want to show you how the chief minister of Jharkhand is responding to all of these updates. Take a look. ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? वो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं। उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। Okay, I have two colleagues with me to bring us more coverage on this entire story. On the top of your screens, as you can see, Mamta Lanjewar, she's present from outside the resort in Raipur in Chhattisgarh, where the MLAs are right now present. On the bottom of your screens, my colleague Saurabh Rathore, who's with us live right now from Jharkhand. We'll go over to him for more updates, but first we'll go over to Mamta to understand more. Mamta ji, हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद। ममता जी, आप हमारे दर्शक को बता सकते हैं अभी रिजॉर्ट में क्या मूड है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन आप हमें दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन इमरान सोरेसी से कहूंगी कि वो आपको दिखाए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर चेक पोस्ट लगाया गया है। ये मेफेयर रिसोर्ट है जो राजधानी रायपुर से आउटर की तरफ है। जो कोई भी आ रहा है उसकी जांच की जा रही है, जो यहाँ से जा रहा है उसकी जांच की जा रही है। भीतर गोल्फ कोर्स है, वो गोल्फ कोर्स जो है वो एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर या और जो विधायक है उनसे कोई मिल ना पाए, इसको लेकर किस तरीके से कोई किसी का कोई कॉन्टेक्ट ना हो पाए, किसी भी तरीके से इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और अगर हम बात करें तो 32 विधायकों समेत और जो झारखंड के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद है। चारों तरफ से अगर कहें कि एक तरह से नाकेबंदी की गई है। न केवल यहाँ पर एक चेक पोस्ट बनाया गया है, बल्कि और चारों तरफ इस तरह से बनाया गया है। अंदर अभी बहुत सारे सुरक्षा कर्मी वहाँ पर मौजूद हैं और ये भी बताया जा रहा है कि विधायक जो है वो किसी से बात न कर सके, यानी उन्हें मोबाइल पर भी बात करने की अनुमति नहीं है। 2 दिनों के लिए ये पूरा जो रिजॉर्ट है बुक कराया गया है। यहाँ तक कि कहा गया है कि जिन लोगों की अंदर ऐसे लोगों के अंदर ड्यूटी लगाई गई है कि वो बाहर न आ सके, यानी कि 2 दिनों तक रिजॉर्ट के अंदर ही रहे। इसके पहले हरियाणा के विधायक यहाँ पर रुके हुए थे जब राज्यसभा चुनाव थे, तो कोई क्रॉस वोटिंग ना हो पाए इसको लेकर के तब इस तरह की व्यवस्था की गई थी। और वही व्यवस्था जो है, बल्कि उससे ज्यादा अगर हम बात करें तो पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 3 जो लीडर्स हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही यहाँ पर आके मुलाकात कर सकते हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो भीतर
पर मुहैया करवाई जा रही है ताकि विधायकों का के जो 2 दिन है वो अच्छे से कट जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल देर शाम को यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने विधायकों से मुलाकात की और बैठक भी की। बैठक करने के बाद आज आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा की। आज मुख्यमंत्री शिमला रवाना हुए और उन्होंने शिमला रवाना होने से पहले कहा कि चूंकि बीजेपी जो है पूरे देश भर में हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और झारखंड में जो है वो अगला निशाना है, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन से चिट्ठी दी गई थी, चिट्ठी देने के बाद में भी अगर बात करें तो राजभवन से कोई बात नहीं की जाती है, यानी कि भीतर खाने में कुछ न कुछ पक रहा है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों को सुरक्षित रखें, इसलिए यहाँ पर लाया गया है। हालांकि जो विधायकों को यहाँ पर लाया गया है उसको लेकर बीजेपी सवाल भी उठा रही है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने कहा कि यहाँ पर दारू और मुर्गा जो है वो खिलाया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह उस समय कहाँ थे जब कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो विधायक हैं उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी, उनकी खरीद पर कोई कोशिश की जा रही थी। तो महाराष्ट्र के जो विधायक हैं उनको उनकी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उस समय क्यों चुप थे? यानी कि जो झारखंड की सियासत है वो उसका उबाल जो है वो छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर नजर रखी जा रही है विधायकों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है और बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले या केंद्र सरकार से कितनी भी कोशिश हो जाए, उनका कहना है कि सेंट्रल एजेंसियों को का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और तमाम जो एजेंसियां हैं उसको उपयोग करके डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पर सेंधमारी संभव नहीं होगी। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षाकर्मी मौजूद है। उस तरफ आप देखेंगे वहां पर भी सुरक्षाकर्मी मौजूद है। होटल का जो स्टाफ है उसको भी नजरबंद किया गया है, यानी कि जितने दिन तक के विधायक यहाँ पर रहेंगे, फिलहाल तो 2 दिनों के लिए बुकिंग की गई है। कांग्रेस मीटिंग के नाम से ये होटल बुक किया गया है, वो वहीं पर रहेंगे, वहां का स्टाफ भी बाहर नहीं निकलेगा। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा गया है कि जिससे इन विधायकों से कोई कांटेक्ट हो सके। जो लोकल वहां के जो अगर हम बात करें जो स्टाफ है उनकी भी लगातार जांच की जा रही है। जी ममता जी, पास्ट में हमने ये भी देखा है कि कभी कभी विधायक के फोन्स लिए जाते हैं, उन्हें इंटरनेट का एक्सेस नहीं दिया जाता है। आज जो अभी छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं वहां पे भी ऐसी कंडीशंस हैं या उतना स्ट्रिक्ट नहीं है अभी? देखिए, हरियाणा के जब विधायक थे यहाँ पर और राज्यसभा को लेकर क्रॉस वोटिंग ना हो इसको लेकर सारी मशक्कत की जा रही थी, तब भी ये थी कि विधायकों को किसी से बात करने की अनुमति नहीं थी। अगर हम बात करें अभी तो मसले को और भी ज्यादा गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार जो है वो खतरे में नजर आ रही है। भले ही हेमंत सोरेन ये कह रहे थे कि कहीं कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये पूरी जो मशक्कत चल रही है, यहाँ पर रिजॉर्ट में विधायकों को लाया गया है, 3 बसों के जरिए यहाँ पर लाया गया था और पूरा जो रूट था वो इस तरीके से बसों के भीतर विधायक थे, उसके बाद भी जिस तरीके से रूट को पूरी तरह से कहें कि एक तरह से उसको घेरा गया था, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, कोशिश ये की जा रही थी कि मीडिया की गाड़ियां भी उस बस के आसपास ना फटकें। तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं सुरक्षा किस तरीके से है। जो मोबाइल को लेकर जो बात कही जा रही है, जाहिर तौर पर यह बात भीतर से आ रही है, भीतर खाने से बात आ रही है कि मोबाइल से भी कोई कॉन्टेक्ट ना हो पाए, क्योंकि आप वैसे भी अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम यही होता है कि मोबाइल किस तरीके से कब्जे में ले जाया जा सके ताकि विधायकों से कॉन्टेक्ट ना हो पाए। और अब जब चूंकि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है, तो जाहिर तौर पर वो सारे माध्यम काट दिए जाएंगे जिससे विधायकों से कोई संपर्क हो सके। और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टाफ से लेकर कांग्रेस पार्टी से अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के कोई भी विधायक या मंत्री, उनको मिलने की अनुमति नहीं है। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वही विधायकों के पास आएंगे। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम को पहुंचे थे, करीबन 45 मिनट तक वो यहाँ पर रुके और यहाँ पर उन्होंने मीटिंग की, आगे की स्ट्रेटेजी पे बात की और आज तो खुलकर ये कहा कि बीजेपी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है और यही वजह है